Good morning, children. Today we are going to start our new chapter. But before starting that chapter, I just want you to tell you a small story. It is very interesting, and if you will hear it carefully, you will get the topic of today's discussion. So let's start our story. Once there was a farmer who bought a piece of land for farming. He started growing some vegetables on that land. But then he started facing a problem. The cattle nearby his farm would stray into his farm for grazing. The cattle would eat the products, okay, the vegetables which he was growing in the land. The cattle used to graze them. The father was very worried as he did not know how to stop the cattle from entering his farm. Upon sharing this problem to his son advised him to erect a fence around the farm to stop the cattle entering into the farm. Okay, the farmer told his son that he did not know how much wire would be required to put the fence. है ना, उसके बेटे ने बोला कि चलो फेंस बना देते हैं पापा, लेकिन फार्मर को ये नहीं पता है कि वो कितना वायर लेकर आए फेंस करने के लिए. फेंसिंग क्या होती है, जो हम आउटर बाउंड्री पे करते हैं, है ना, सबके घर की बाउंड्री वॉल होती है. दे आर एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ फेंसिंग. Upon hearing this, the farmer's son decided to do the task himself and brought a measuring tape and set out to measure the boundary of land. ठीक है, he first measured one side, then second side, then third side and in last fourth side. ठीक है, तो उसने चारों साइड्स को मेजर किया एंड देन व्हाट ही डिड, ही टुक द टोटल. ओके, ही एड ऑल द साइड्स एंड टेक आउट द टोटल. सो कैन यू टेल मी चिल्ड्रन व्हाट द सन हैड एक्चुअली मेजर्ड? Yes, the perimeter of land. जो outer boundary है that you can say it is the perimeter. Okay, so the sun has calculated perimeter by adding the measurement of all the sides. Okay, so what you can say, what the perimeter is? It is the boundary that surrounds the लैंड और एनी टू डायमेंशनल फिगर. ठीक है, कोई भी क्लोज टू डायमेंशनल फिगर हो सकता है वो. आइदर इट कैन बी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर कोई भी इरेगुलर शेप्स. तो पेरीमीटर क्या होता है? यू जस्ट हैव टू ऐड द मेजरमेंट ऑफ ऑल इट्स साइड्स. ठीक है, the farmer was observing what his son was doing, but he still did not get the idea that how his son can find out the amount of wire he required for fencing. Then the son has told him that the amount of wire required is equal to the perimeter of land. है ना, जितनी बाउंड्री है उतना ही हमको वायर चाहिए. तो उसने बताया है कि फादर, जितनी हमारी पेरीमीटर है, जितनी बाउंड्री की मेजरमेंट है टोटल, सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस दिस लैंड. So this, now the farmer is clear that how much amount he required. तो कितना चाहिए उसको? Yes, the total of perimeter. Okay, so this is about perimeter. Now the farmer wants to lay grass bed and aborted the idea of growing vegetables. So he bought
grass mats of length 1 meter and breadth 1 meter and put that grass mats to cover the whole space of the land. So children, now tell me how many grass beds that farmer has used to cover the whole space? Yes, 9 mats. If you will count it, see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So what we can say? We can say that the land is having space equal to 9 mats, and in mathematical terms we call that space area. Okay, so what you can say, the area the land is having, area equals to 9 mats. Okay, so area क्या होता है? Basically it is the space along the boundary of a 2D shape, you can say, of anything. Okay, so counting each and every mat is lengthy, है ना. अगर आप बड़ी एरिया है वहाँ पे आप एक एक मैट को काउंट करोगे? नो, वी आर हैविंग अ शॉर्ट मेथड टू हाउ टू कैलकुलेट एरिया. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ. सो हियर ग्रास मैट जो अलोंग द लेंथ, कितनी ग्रास मैट है? 3, और सबकी कितने लेंथ है? 1 1 1. तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3 meter. And in breadth also we are having 3 grass mats and each is having 1 meter breadth. So 1 + 1 + 1, 3 meter. Now if you will multiply them, तो कितना आंसर मिलता है? 3 meter square. मीटर मीटर जब मल्टीप्लाई होते तो क्या बनता है वो बेटा? मीटर स्क्वायर. ओके, सो 3 3s are 9. तो यू आर गेटिंग आंसर 9 मीटर स्क्वायर. आंसर इज सेम ना, वहाँ पे भी 9 मैट्स है, यहाँ पे भी आंसर 9 आ रहा है. बट नाउ द यूनिट इज व्हाट? वहाँ पे मैथ्स हम यूज़ कर रहे हैं, बट इन मैथमेटिकल टर्म्स वी आर यूजिंग इट्स यूनिट, नो, मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो वी कैन से दैट always the unit of area we calculate it is in square meter or meter square. So this is all about the area. I hope you have understood the concept of perimeter and area. Now we will see our exercise questions. Okay children, so now you have seen the story of how to calculate perimeter and a brief introduction of perimeter and area. So now here we will discuss perimeter and area in case of squares and rectangles. So before starting this, I just want to know what do you mean by squares? Yes, all the sides are equal. In squares, all the sides are equal. So you can say a closed polygon whose all the sides are equal are known as squares. So it is looking like what? Squares or rectangle? Squares. Okay, here we are having, you can take side as L also or S. Okay, side as L. ठीक है, मैंने यहाँ पे L लिया हुआ है. So perimeter क्या है? Total area, सॉरी टोटल दिस बाउंड्री है ना, बाउंड्री का टोटल है हमारा पेरीमीटर होता है. तो यहाँ पे तो सारे साइड्स क्या है? एल है. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. क्या है स्क्वायर? ए बी सी डी है ना. ए बी सी डी इज इक्वल्स टू दिस एल प्लस एल, ये वाला L, फिर ये वाला L, फिर ये वाला, है ना, along the boundary. ये हमारा 4 बार L हो गया. मुझे 4 बार L नहीं लिखना है ना, बार बार आप 12 + 12 + 12 + 12 करो. इससे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन. दैट यू नो ना, मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेटिव एडिशन. तो यहाँ पे कितने L है? 1 2 3 4. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 multiply by L, or you can say in technical terms 4 into side. Okay, 4 into side, you will get the perimeter of square ABCD.
ओके, तो ये था हमारा पेरीमीटर। अब हम देखेंगे एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया हम कैसे निकालते हैं बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, मीन्स एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे ये पूरे जो एरिया है उसको कवर करता है। आई हैव क्लियर्ड यू इन द स्टोरी कि कैसे आप एरिया करते हो और एरिया हमारा इस तरह से हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एक ये वाला और एक ये एल इंटू एल, इसको मैं एक में भी लिख सकती हूँ। कैसे? एल स्क्वायर, और यू कैन से साइड स्क्वायर। So this is your area of square. साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों लिख सकते हो, साइड इंटू साइड भी आप लिख सकते हो। 4 इंटू 4 60, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्वायर। Now we will move towards our another closed polygon that is known as rectangle. Here this is length, horizontal line क्या होती है? लेंथ होती है, और जो वर्टिकल होती है वो ब्रेथ। ओके, दिस इज ब्रेथ। अब हम क्या करते हैं? सेम फॉर्मूला, हर चीज में हमारा कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस हमारे डायमेंशंस की वजह से जो होते हैं फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा पेरीमीटर क्या होगा? टोटल लेंथ एंड ब्रेथ है ना, 2 टाइम्स लेंथ होगा, 2 टाइम्स ब्रेथ होगा, ठीक है ना। सी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या होगा? ये एक लेंथ, इसको मैंने ले लिया L1, ठीक है, L1 प्लस ब्रेथ को मैंने ये B1 लिया, B1, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, इधर गई फिर इधर गई, अब इधर जाती हूँ, इधर मैंने L2 लिया, L2 और फिर यहाँ पे मैंने B2 ले लिया, ठीक है। तो ये हुआ B2। Now you know in case of rectangles opposite this length and breadth they are equal, length are equal and breadths are equal, है ना, opposite sides are always equal। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? ये दोनों जो L है L1, मैं उसकी जगह पे 2 इंटू L लिख सकती हूँ, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है L1 L2 डिनोट करने में, तो आप उसको L भी डिनोट कर सकते हो, है ना, एज दे आर इक्वल, तो आप उसको L भी लिख सकते हो। ओके, सो जस्ट what we can do, just let's don't give them numbers, okay। L, तो यहाँ पे ये हुआ L। अब यहाँ पे 2 इंटू B, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑपोजिट ये ब्रेथ है, ये भी हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू L, 2 इंटू B, ये दो बार 2 है, मैं उसको एक बार लिख सकती हूँ, कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, कॉमन निकाल सकते हैं 2, फिर हमारे L प्लस B, ठीक है। कॉमन क्या होता है? अगर दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है, कोई एक कॉमन फ्रेंड होता है, हम उसको कॉमन लेते हैं ना, वो तुम्हारे साथ भी है, वो तुम्हारे साथ भी है, तो वैसे यहाँ पे भी है, 2 जो है वो L के साथ भी है और ये 2 B के साथ भी है। तो दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी विल सी एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा? ये साइड और ये साइड, है ना, तो ब्रेथ इंटू लेंथ और लेंथ इंटू ब्रेथ, आप जो लिखना है, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमारा L है, B हमारा ब्रेथ है, एंड हमको पता है कि दे बोथ आर अनइक्वल, है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा L इंटू B, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर हमेशा यूनिट भी मैंने बताया आपको किस में होता है? मीटर, सेंटीमीटर, है ना, इन सब में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एरिया जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज ये जो दोनों है ये पूरे चीज को, ये पूरा इसका स्क्वायर होता है ना, एरिया हमारा ये पूरे अंदर का एरिया होता है, इसलिए हम उसको लिखते हैं स्क्वायर। दैट आई हैव टोल्ड यू, है ना। So now we will start our exercise 11.1.
Okay children, so now we will see first question of exercise 11.1. The length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Respectively means length is 500 meter and breadth is 300 meter. Now you have to find its area and the cost of land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. Okay, so how you have to solve such type of question, that I will tell you first. Remember, if you are dealing with any word problem of perimeter and area, first you have to read the question and draw its diagram. ठीक है, तो then the diagram will give you a clear vision, okay, to how to proceed towards the solution part. Okay, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड बना, रेक्टेंगल बनाना है हमको यहाँ पे. तो सपोज ये मेरा यहाँ पे ये मेरा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि दिस लैंड इज 500 मीटर, मीन्स द measure of its length is 500 meter and breadth is 300 meter. Okay, this is your land. You can give name also A, B, C, D if you want. Okay, then this is the length and breadth. Now you have to find the area. So we will first solve its first part. Okay, the first part हमें कैसे निकालना है? You all know, है ना? If first you will write the statement. क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर piece of land. If you can write rectangular land, piece of land you can write. So here 500 meter. Okay, then breadth of rectangular piece of land. So it is equals to 300 meter. Now you have to find the area. You all know how to find the area. Area of rectangle means you have to use the formula to calculate area in case of rectangle. Okay, so area of rectangular piece of land is equals to क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. ठीक है, सो हियर यू विल राइट 500 मीटर इंटू 300 मीटर. So what will be your answer? 5 3s are 15. Okay, 15 and 1 2 3 4. 4 zeros. Okay, so your answer is 1,50,000 meter square. Okay, यहाँ पे 2 मीटर है and we are multiplying. तो मीटर स्क्वायर एरिया का हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में. So you will write 1,50,000 square meter or meter square. This is your first part. So now we will see the second part. The cost of land, if 1 meter of land cost rupees 10,000. अब हमको एरिया पता चल गया. अब हमको क्या निकालना है? पूरे लैंड का कॉस्ट निकालना है. सपोज आपको एक पूरे पेंसिल का बॉक्स लेना है. उसमें कितने पेंसिल्स होते हैं? 10 पेंसिल्स हैं. ठीक है, सपोज उसमें 10 पेंसिल्स हैं. आपको एक पेंसिल का प्राइस पता है. एक पेंसिल की प्राइस कितनी है? 2 है. तो पूरे बॉक्स की कितनी होगी बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 that you have learned in your 5th and 6th standard also, unitary method, है ना. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि जब 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर, एक जो एरिया है यहाँ पे मान लो सपोज कि जो इतना है इसका आपको पता है, तो आप ये पूरे का निकाल सकते हो. एक का पता है आपको, आपको मल्टीपल जो यहाँ पे है पूरा एरिया, आप उसका प्राइस निकाल सकते हो. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू रुपीज 10,000
Don't forget to write the statement, because in the word problems your statement are what they tell us कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, कि how much you have understood the question. ठीक है. So cost of 1 meter square of land is equal to 10,000. So here you will write cost of कितना एरिया यहाँ पे 1,50,000, या फिर 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. क्या करेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, है ना. नाउ यू विल गेट द आंसर 1 2 3 4, ये 4 हुआ, 1 2 3 4 2 3 4. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो ये आपका कॉस्ट हो गया. ठीक है. दिस इज योर कॉस्ट फॉर 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. Find the area of square park whose perimeter is 320 meter. So first step is what? To make the diagram. Diagram कैसा होगा हमारा, ये एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, जितने भी इसकी साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं उसका पूरा जो है, तो वहाँ टोटल कितना है 320 मीटर. ओके. यू हैव टू फाइंड द एरिया. तुमको पेरीमीटर दिया है, तुमको एरिया फाइंड करना है. कभी भी जब तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जो तुमको दिया होता है उसका फॉर्मूला के साथ फर्स्ट यू हैव टू राइट. ठीक है. दिस विल गिव यू द आइडिया टू कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा यहाँ पे, आई विल राइट कि क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क. ओके. दिस हैज बीन गिवन, क्या है 320 मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 320 मीटर. ठीक है. अगर 4 इंटू साइड दिया हुआ है, अब हमको फाइंड करना है, एरिया करना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी. अगर यहाँ मैं लिखूं टू फाइंड एरिया, एरिया का फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो आप मतलब इनकेस यहाँ पे ब्रैकेट में आप फॉर योर रेफरेंस यू कैन राइट द फॉर्मूला. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. ठीक है. ये हमारा गिवन पार्ट था, दिस वाज द गिवन. ओके. गिवन में क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्ट 320. उसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड 320 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए. यहाँ पे साइड दिया हुआ हमको नहीं दिया है, लेकिन हम इस वाली इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द साइड. ओके. सो यू विल यूज दिस वन. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस पेरीमीटर is equals to 320 meter, so 4 into side is equals to 320 मीटर. ठीक है. तो साइड यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे 4 इंटू साइड है, हमने किया था सिंपल लिनियर इक्वेशन में, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है इक्वल्स टू के बाद कहाँ पे आता है, वो डिवीजन में, है ना. तो यहाँ पे साइड क्या होगा, 320 डिवाइडेड बाय 4. यू विल गेट दी मेजरमेंट ऑफ साइड. ठीक है. यहाँ पे आपको साइड का मेजरमेंट मिलेगा. दिस यू विल फाइंड. ठीक है. क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया, अब तुमको ये पूरा खुद से सॉल्व करना है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे साइड मिलेगा. अब हम क्या लिखेंगे, ओके. सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू क्या होगा, साइड इंटू साइड. फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, साइड इंटू साइड, फिर जो ये आएगा उसको तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. सपोज अगर 4 मीटर आता है तो 4 इंटू 4, 6 आता है तो 6 इंटू 6. इन दिस वे यू विल गेट द आंसर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. आई थिंक दिस हैज बीन क्लियर टू यू कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तुमको पेरीमीटर दिया है, तुमको एरिया निकालना होता है, या फिर वाइस वर्सा, तो फर्स्ट तुम उस जो तुमको दिया है तुम उसको लिखो,
ठीक है, इट विल गिव यू द आइडिया कि तुम्हें नेक्स्ट में तुमको क्या निकालना है और व्हाट विल हेल्प यू, ठीक है, जो गिवन पार्ट में तुमको क्या हेल्प कर सकता है फॉर फर्दर स्टेप्स, ओके, टू टेक आउट द सॉल्यूशन. नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, if its area is 440 meter and the length is 22 meter. अब हमको यहाँ पे निकालना है breadth. First, what you will write? You will write given, okay? You will write given. यहाँ पे लिखोगे तुम given. क्या दिया हुआ है? Area दिया है. Area of, yeah, you will write rectangular plot of land is equals to 440 मीटर स्क्वायर. फिर क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. यहाँ पे तुमको डैश डैश नहीं करना है ना, तुमको यहाँ पे प्रॉपर लिखना है 22 मीटर. ये आपको गिवन है. व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ? टू फाइंड ब्रेथ. फर्स्ट हमको फाइंड करना है ब्रेथ, ठीक है, एंड सेकेंड इज पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर. So once you find out the breadth, you can easily find out the perimeter by using the simple formula. क्या है formula उसका? 2 into L plus B, ठीक है. अगर again I am telling you, if you can for a reference you can write here in bracket formula 2 into L plus B. As you can see here, L दिया हुआ है, तुमको ब्रेथ निकालनी है, तो पहले हम ब्रेथ निकालते हैं, ठीक है. एरिया इज 440. यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 440 मीटर. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ, वो क्या है? 440 मीटर. लेंथ क्या दिया हुआ है हमें? 22 मीटर. यू हैव टू फाइंड आउट ब्रेथ. इट इज सेम एज सेकेंड मान लो, यहाँ पे 440 आया, ठीक है, 440. अब क्या करोगे? ब्रेथ इज इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर. तुम कैसे लिख सकते हो? m इंटू एल, और यहाँ पे 22 मीटर. मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर रह गया. देन यू हैव टू सॉल्व इट. योर आंसर विल कम इन मीटर, ठीक है. तो इन दिस वे यू विल फाइंड आउट दी ब्रेथ. अब तुमको ब्रेथ मिल जाता है, यहाँ पे ब्रेथ मिल गया. पेरीमीटर में तुमको क्या चाहिए? L और B. लेंथ हमको 22 मीटर दे रखी है. ब्रेथ यू हैव फाइंड आउट by this method, okay. So simply you have to put these values to find out your second part, but don't forget to write the statement, okay. इतना और भी आप सेकंड लिखोगे. yes, perimeter is equals to 2 into L plus B. so 2 into L की जगह 22 plus B की जगह जो यहाँ पे आंसर आएगा that you will write and solve it. so in this way you will solve your third question, children. so now we will see fourth part. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. So if the length is 35, find its breadth, and also you have to find the area. First you have to make a diagram. This is your rectangular sheet, okay, and its perimeter is 100 centimeter. Perimeter मतलब 2 into L plus B, which is 100 centimeter, ठीक है. लेंथ क्या दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ, ठीक है. गिवन पार्ट यू विल राइट बाय योरसेल्फ. क्या लिखोगे गिवन में? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर. लेंथ इज 35. टू फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एंड एरिया, ठीक है. इतना आप लिखोगे. देन सॉल्यूशन पार्ट में आपको क्या लिखना है? पेरीमीटर हमारा दिया है ये, ठीक है. सो लिखोगे पेरीमीटर of rectangular sheet of paper is 100 centimeter. That means 2 into L plus B. It is equals to 100 centimeter. Now you have to open it. L हमारा क्या है यहाँ पे? 35. So 2 into 35 plus B 100 centimeter. अब हमारा जो ये 2 है, पहले हम उसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है.
आई एम सॉल्विंग दिस सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि कैसे वह सम्स को कैसे करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे 35 है, 2 और 100 कितना होता है, 50 होता है। सो b इज इक्वल्स टू 35 प्लस d इज इक्वल्स टू यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब ये 35 पॉजिटिव है, उधर क्या हो जाएगा माइनस। सो b इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर माइनस 35 centimeter. So when you subtracted, you will get the value of bread. Okay. So as you got the value of bread, you can find out its area easily. Length into bread, length आपको पहले से मिला है and bread you have find out in the first part. Okay. So in this way you will solve the fourth one. Now see fifth one. The area of a square park is same as of a rectangular park. मतलब कि ये जो स्क्वायर पार्क है ना, इसका एरिया इट इज इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60, साइड स्क्वायर पार्क की दी है मींस ऑल द साइड्स विल बी 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, यहाँ पे 90 है, ठीक है। लेंथ इज 90, यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ, यू हैव टू फाइंड इट्स ब्रेथ। ये हमको नहीं पता है, क्या लिखोगे पहले, यू विल ड्रॉ द डायग्राम, यू विल राइट डाउन गिवन पार्ट एंड देन टू फाइंड। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एरिया दोनों का सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, साइड इनटू साइड, ठीक है। साइड इनटू साइड होता है और यहाँ पे क्या है साइड 60, तो 60 इंटू 60 है ना, 60 इंटू 60 यू विल गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं ये सॉल्व नहीं करूंगी, दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, साइड इनटू साइड, पहले हम ये एरिया निकालेंगे। अब हमको पता है कि इन दोनों का एरिया सेम है, तो इस एरिया को यूज करके हम ब्रेथ निकाल लेंगे, जैसे हमने इधर किया था। पेरीमीटर था, पेरीमीटर की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आंसर कितना आया 3600 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया किसका है, एरिया तो सेम है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इसके लिए भी 3600 मीटर स्क्वायर हम एरिया यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। यू नो द लेंथ इज 90 मीटर, ब्रेथ यू कैन फाइंड आउट, लेंथ 90 है, इधर तक क्या हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 90, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ ऑफ rectangle. Okay, so in this way you will solve your fifth question. Okay. Okay children, so now 6th, 7th and 8th question that you have to understand it by your own and then you will try to solve it. Okay, first you have to read the question, draw the diagram accordingly. जो गिवन है, सपोज अगर पेरीमीटर गिवन है तो राइट इट्स फॉर्मूला ऑल्सो, ओके, एंड देन यू विल कम टू नो कि व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट. सो यू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट वी विल डिस्कस इट इन आवर Google Meet.